very good morning to everyone. We have been proud to see many of our alumni achieve remarkable success and build impactful careers under the leadership of our founder principal, late Shri R.S. Patel, and now Ma'am Jaswinder Kaur Sidhu and the faculty. From leaders in business and technology to innovators in arts and sciences, our pass-outs have made their mark across various fields. Some have built thriving enterprises, led global organizations, and made groundbreaking contributions to society. Their stories of perseverance, innovation, and achievement not only reflect the quality of education here, but also inspire current students to pursue their passions and make a difference. We are honored to have such a talented and accomplished network of alumni, and we are excited to see the continued achievements of our students shaping the future. Please clap for your esteemed institution. Under the skillful leadership of our respected principal Ma'am Jaswinder Kaur Sidhu, we started a series of DAV talks back in 2019, where we invite our prestigious alumni to share their insights and the stories of success. To name a few, we have listened to Mr. Vinay Jain, Engineer Sunil Singhal, Dr. Ritesh Sood, Mr. Ayush Garg IAS, Mr. Sumesh Singh IPS, Ms. Aman Dua, and many more. So, welcome to today's session of DAV Talks. It's a proud moment for us to welcome back one of our very own, Dr. Milan Verma, a distinguished alumnus of our school. After completing his schooling here, he pursued MBBS from the renowned Christian Medical College, Ludhiana, followed by a post-graduation in general surgery. He further specialized with a fellowship in laparoscopic surgery, mastering minimally invasive surgical techniques. Today, he serves as the director of Verma Multi-Speciality Hospital, Ludhiana, a center of clinical excellence. He is also the chairman of Durga Group of Colleges, shaping future healthcare professionals in nursing and pharmacy. Dr. Verma is a national level swimmer proving that discipline and dedication go beyond academics. He is a cricket club promoter, a motivational speaker, and an active force in youth empowerment. He combines medical brilliance with leadership, compassion, and deep love for fitness and public service. Please join me in welcoming an inspiration to all of us, Dr. Milan Verma. Please clap for him. I will request my principal ma'am to welcome our esteemed guests. Yes, sir. And advise with you. This is a fantastic opportunity for you to learn from those who have walked the paths you are considering, to ask questions and to gain valuable perspectives on your own journeys. Let's get started and make the most of this engaging conversation. Over to you, sir. Good morning, everyone. Good morning, ma'am, respected principal, ma'am, respected teachers, and my dear friends. Myself, Dr. Milan Verma. I am a consultant surgeon with Verma Multi-Speciality Hospital, and I am an entrepreneur. I run businesses and few educational institutions. Before I start, I'd like to give you a brief introduction about myself. I was never a brilliant child. Let us start from here only. I was an average student. Never the one who in the front or never the backbenchers. I was very average. Like those people who get unnoticed, who have that existential problems also. कि मैं हूँ भी या तो टॉपर का नाम आता है या शरारती बच्चे का नाम आता है, ऐसे होता है ना. तो एक एवरेज सा बच्चा था मैं. I was like a very average student, average in everything. But few things in me were there, or which I still believe helped me to pursue through this, to achieve what I wanted to achieve, or maybe like what I wanted to pursue in my life. वो सब करने के लिए मेरे में कुछ था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. जो लोग ब्रिलियंट है वो तो है ही, उनको तो कम ही बताना पड़ता है. जो बैक बेंचर्स हैं उनको पता है बेस्ट करना क्या होता है, वो भी निकल जाएंगे. जो एवरेज वाले होते हैं ना उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है आगे कैसे आना है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. आई विल नॉट मेक इट वेरी प्रीचिंग टाइप, ऐसा करो एंड ऑल दिस. उससे क्या होता है कि आप लोग बोर हो जाओगे 10-15 मिनट में, मजा आना बंद हो जाएगा, एंड सम माइट इवन स्लीप, जो रात को सो नहीं पाए प्रॉपर्ली. तो थोड़ा सा इसको सिंपल रखेंगे और स्ट्रेट रखेंगे. आई विल गिव यू सम बिफोर आई स्टार्ट अबाउट
anything, the most important thing I would like to discuss is the discipline. Few things you should take away from here is like, which is very important in your life, is first thing is discipline. Have you heard about Tesla? Tesla is a car, no? Like, or maybe some people who like good cars, Range Rover, Defender, big cars they have. These cars you can take it as a talent. You might be a very talented person. You might be very talented. You have a very talented artist, or maybe like very talented in grasping things or learning it fast. Until unless you have discipline, you won't be able to make it. I tell you why. If you don't charge the Tesla, if you don't charge your car, or you don't refuel your car, that Defender or big cars you have, they will not work. Similarly is discipline. You need to have discipline in the life. Everybody knows at your age, you are from +1 +2, that what is important for you, ना? You must be knowing, and मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है. तुम्हारे पेरेंट्स, आपके टीचर्स और सब जो इतने लोग तुम्हारे बड़े घर में हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, they have already told you what is good discipline. So staying in discipline is the first thing which you should do. If you are repeatedly doing one thing in a disciplined manner, कि मेरे को पढ़ना है, डेली इतने घंटे पढ़ना है या मेरे को इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो डेफिनेटली यू विल स्केल थ्रू, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको. In my story I can tell you, like when I was a resident, in my CMC times, so what problem we used to have, हमारे वहाँ एक बेसिक सी प्रॉब्लम आती थी कि ना जो हमारे बॉस होते थे, like he was very particular about the reports at 8:30 in the morning. Like morning we will have rounds, surgery rounds, तो 8:30 बजे बॉस को रिपोर्ट देनी होती थी. हम रात को 12 बजे फ्री होके घर जाते थे, घर मतलब हॉस्टल रूम में जाते थे. सुबह 8:30 रिपोर्ट लेने का मतलब था कि आपको कुछ ना कुछ नई स्कीम करनी पड़ेगी, जो रिपोर्ट मिल ही नहीं सकती, सैंपल नहीं आते थे. तो हमने एक डिसिप्लिन बना लिया. वी आर 2 रेजिडेंट्स कि कम व्हाट में हैपन, कुछ भी हो जाए, 5 AM अलार्म बजेगा, उठ के जाएंगे, सैंपल करेंगे, चाहे रात को 2 बजे सोए, चाहे 3 बजे सोए. सुबह 5 बजे का डिसिप्लिन था कि 5 बजे जाएंगे. डिसिप्लिन से हम अपने पेशेंट के सैंपल लेंगे और जो 8 बजे आएगा वो डिसिप्लिन से रिपोर्ट लेके वहां रख देगा. बाय दिस वी गॉट द बेस्ट रेजिडेंट्स अवार्ड. वी कंटिन्यूड दिस. वी हैव द एवरी डे वी यूज्ड टू गिव सिंपल रिपोर्ट्स, और कुछ सिंपल हमने भी बहुत ज्यादा इसमें जोर नहीं लगाया. एक सुबह 5 बजे अलार्म बजता था, हम सैंपल लेने चले जाते थे, 8:30 आ जाते थे. एंड आवर बॉस, लाइक माय बॉस, ही स्टिल रिमेंबर्स कि एक ऐसे रेजिडेंट्स थे जिन्होंने कभी भी डिले नहीं किया, और कोई हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया था, बस वी जस्ट फॉलोड अ डिसिप्लिन रूटीन. सो इफ यू आर स्टडिंग, तुम कुछ पढ़ते हो, हमेशा डिसिप्लिन में पढ़ो कि यार मेरे को ये इतने घंटे में पढ़ना है, या दिस आई वांट टू लर्न दिस, या आई वांट टू पुट 2 hours to physics or maybe 3 hours to chemistry every day. So then you have to put those 3 hours every day. If you study for like 9 hours in a day and then you are not disciplined to study next 7 days, it's not gonna help you. Persistent, disciplined effort will definitely result into a victory, 101%. Now the second thing, the next thing I would like to tell is developing habits. Discipline के बाद हैबिट्स इंपॉर्टेंट है. हैबिट ऑफ, इफ यू रिपीटेडली डू सम गुड थिंग्स ना, वो आपकी आदत बन जाती है. इट बिकम्स योर हैबिट. इफ यू डेवलप गुड हैबिट्स, इट विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग. लाइक वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई नो मेनी ऑफ यू माइट बी रीडिंग लेट नाइट्स. बहुत लोग देर रात तक पढ़ते होंगे, बट बिलीव मी, जो सुबह उठ के, लाइक इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू स्टडी, उसका जो आपको एडवांटेज है ना, वो किसी भी एंगल से, किसी भी पर्सपेक्टिव से रात के पढ़ने से ज्यादा है. लाइक लास्ट टाइम मैंने समझाया था, अगर रात को ही हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो विप्रो हो गया, TCS हो गया, टाटा कंसल्टेंसी, और दैट फॉर अदर दैट पर्पस इवन गूगल, दे विल आल्सो वर्क इन द नाइट. दे हैव नथिंग, दे हैव नो अदर, उनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है. उनके पास तो क्या है, सिर्फ लाइट ही ऑन करनी है, मशीन कंप्यूटर पे काम करना है. बट देन आल्सो दे हैव देयर डे वर्किंग आवर्स, because we are the maximum efficient during the daytime. So always wake up early. हमेशा जल्दी उठो and never block your thoughts. If you think that you can do some work or some study और कुछ ऐसा पढ़ सकते हो जो तुम्हें लगे, जो तुम्हारे पास better perspective है, always try that.
कभी अपने थॉट्स को ब्लॉक मत करो, नेवर बी प्रीऑक्यूपाइड विद पीपल जो ये बोलते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कर नहीं सकते हो। जो लोग आपको ये बोलते हैं, आपके थॉट्स को ब्लॉक करते हैं, लेट्स से समबडी हु से यार तेरे से नहीं हो पाएगा तो रहने दे, तू तो ऐसे कर, तू कुछ और ही कर ले। Actually, they are not telling you what you should do. They are conveying what they can't do. Understand? If I tell this boy sitting in second row, भाई तू नहीं कर सकता भाई, तो practically I am not telling him, and I am expressing that I can't do. So those who tell you that you can't make it, practically they know that they can't make it. So never get carried by people's thought. Somebody gives you some thought, don't get carried away कि हाँ यार ये बात मेरे को इसने कैसे बोल दी यार, या तो ऐसे बोल रहा था या ऐसे बोल रही थी. Doesn't take negative thoughts from people. Just generate your own positive energy and keep those own positive thoughts in yourself. Very important. Another habit you should inculcate is gratitude. You should have gratitude for all those who work for you. Starting very important, most important is recognize the sacrifice of your parents. All you, those who are sitting on chairs in this air-conditioned hall and having a lavish lifestyle, coming to school in maybe bus or car or somewhere around, like maybe they're on bike and having 3-time meals, should have gratitude toward their parents. You are too young to know about the hardship of the life. You have just one exam to crack, maybe like +1, +2, क्या एक पेपर ही पास करना है. But your father, he cracks that exam every single day when he earns a penny for you. When you ask or you fight with your mother or father, you should know that you're doing something which is very, very wrong. You should have so much gratitude towards your parents that it's not their responsibility to teach you. It is their love. That is, because of that you are in such a esteemed school. No, it's real love. And you should have that gratitude. जिद करते हैं, लड़ते हैं, बात नहीं सुनते हैं. जिद करने तक ठीक है, जिद बनाई जा सकती है. बात नहीं सुनते हैं, चलो वो भी समझ आ सकता है. जब आप उनसे रूड हो जाते हैं ना, जब आप उनसे लड़ पड़ते हैं ना, that is wrong. So you should have a habit of gratitude towards your parents, very important. And secondly, the gratitude towards your teacher. They are not here for salaries. Few of them are very well established, I know. They are here for a purpose. They love teaching. These teachers, see, I tell you, in this same school, I have walked in the alleys that you have not sit in the same benches in the college time, the block which is the teacher block bana raha tha. So we stayed in the same school and studies. There's no difference. Only thing which I always kept was gratitude. I listened to my teachers, Vesha. Have respect for them till date. Gratitude is very important. You should develop the habit of gratitude. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोला है, अगर आप बार बार रखोगे तो आपके अंदर वो हैबिट बनी जाएगी. Understand? And last thing, which I want you to inculcate is learning one new good thing in a week. हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई आदत अच्छी सीखो. Let's say you do something good, उसको improve करने के लिए भी और तरीका है. Maybe small improvement which you can make. Because repetition से ही habit बनती है. और अगर आप नई चीज ढूंढोगे पुराने के ऊपर तो आपकी हैबिट बन जाएगी. ठीक है? What do you want? Next, I will be talking to you about the use of technology. हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है. It's like fire. मैं तो हमेशा बोलता हूँ. I have got 3 kids. मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं तो मैं बोलता हूँ कि it's like fire. When I discuss my wife, उससे बोलता हूँ it's fire. Why cooking करते हैं जब तो they cooking on the fire only. उससे हम खाना बनाते हैं. But that fire can also burn the house. So technology is just like fire. If you know how to use technology properly, you can excel. Like example is 3 घंटे बैठ के कोई बंदा रील देख रहा है. These people keep scrolling like this. You keep scrolling and just killing those 3 hours in your age group. It is going to be like just like killing your career. तो आपको करना क्या है? Technology में you can see, you can listen to lectures in physics. You can hello, hi. आपस में मेरे से बात कर सकते हैं आप. Don't mind, मेरे को ऐसे रोक लेते थे. तो see what आप टेक्नोलॉजी में को आप यूज कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए. Let's say if I have to learn something, let me talk about myself. I follow Lab Guru. It's an online web platform wherein we see surgeries, where we attend online CMEs.
हमें भी कोई ऊपर से सीख के नहीं आते, हम देखते हैं सीखते हैं, देखते हैं सीखते हैं, देखते हैं सीखते हैं, बार बार देखते हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, कोई चीज नहीं समझ आ रही, जी यूट्यूब इज अ गुड थिंग, बट यू हैव टू सी व्हाट यू फील। अकाउंट्स, कॉमर्स, मेरे ख्याल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पूरे पूरे लेक्चर होंगे, हर चैप्टर के लेक्चर होंगे विच यू कैन रियली रीड, बट द राइटर इज दिस, इट इज द बुक विच इज द मेन थिंग। इट कैन हेल्प एंड असिस्ट यू। जब आपका दिल करता है कि मैं स्क्रॉलिंग करूं, तो आपने स्क्रॉलिंग, यार अभी ये व्हाट्सएप जोक एंड ऑल, इसको छोड़ के ये 2-3 साल जो हैं, दिस इज करियर फाउंडेशन ईयर्स, इसमें आपने अगर उस समय भी यू कैन लिसन टू सम, यू कैन लिसन टू दिस थिंग, पॉडकास्ट ऑफ सम गुड फिजिशियन और मे बी अ गुड अकाउंटेंट और अ गुड सीए, उनके सीखोगे, दैट विल मोटिवेट यू। It's like just changing your frame from entertainment to education in technology. So technology has to be, a mobile phone बंद नहीं कर सकते हम, नहीं हो सकते. We tried a lot. You have to just change the content which you see in mobile phone. Instagram और क्या Facebook, it will follow on its own. Once you are above that line ना, जब आप एक बार किसी प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाओगे, तो आपका नेटवर्क बन जाएगा. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर अभी आप एक नेटवर्क बना रहे हो ना, तो उस नेटवर्क में सब नॉन प्रोफेशनल है. Remember this. जब आप Facebook या Instagram और क्या आजकल आप few more things which have come up, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जब ये आप एम्स दिल्ली में बैठ के बनाओगे ना, तो तुम्हारे नेटवर्क में एम्स दिल्ली के लड़के होंगे, अंडरस्टैंड, या मौलाना आजाद के होंगे या सीएमसी लुधियाना के होंगे, तो वो नेटवर्क भी वैल्यूएबल होगा. What a point. It's all about networking. Somebody who is going to IIT Delhi, तो उसका नेटवर्क IIT दिल्ली में बनेगा. तो मेक अ प्लेज दैट आई विल मेक अ फेसबुक प्रोफाइल. ये सब दोस्त तो साथ दोबारा जुड़ जाएंगे. तुम में से कोई बंदा अगर आईआईटी निकाल जाता है, आईआईटी दिल्ली में जाता है या आईआईटी कानपुर में जाता है, अच्छे स्टूडेंट आता है, ये सब लोग तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली एंड आई हैव एक्सपीरियंस टू दिस. आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट. I faced so many failures. I will talk about failures also. Before that, I will share a story. How many of you really know about Govind? I'll talk about Govind Jaiswal. किसी को पता है in the hall about Govind Jaiswal? Somebody can raise hand if he knows about Govind Jaiswal. I think around 150 students are there. चलो, I'll tell you. This boy was from Varanasi. वाराणसी बनारस ना, वहां से था. उसके उनके पास छोटी सी जमीन थी. He had a small piece of land, and apart from that, his father was a rickshaw puller. वो उसका पिताजी रिक्शा चलाते थे. He used to like what do you say, कि वो आदमी को पीछे ढोके लेके जाते हैं और कई बार सामान भी लेके आते थे. And he used to assist his father in that also. But at the age of 11, listen clear, listen, yeah. I'm audible there, na? The voice who are talking, पीछे वो, the one, yes, I'm talking to you. सुने, शायद तुम्हें इसका फायदा हो जाए. ये बात सुनने वाली बेटा. तो वो रिक्शा चलाते थे. He used to, उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे. वो उसको at the age of 11, he had an experience. उसको किसी दोस्त ने उसके घर से बाहर निकाल दिया. कहते तू गरीब है यार. मेरे पिताजी बोलते तुम हमारे स्टेटस के नहीं हो, तेरा डैडी रिक्शा चलाता है. इट हैपेंड विद हिम. हिज नेम वाज गोविंद जायसवाल. तो उसके किसी दोस्त ने पूछा उसने दोस्त से पूछा, यार तुम मेरे को अमीर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहते तेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा. तो सेड वो कैसे होता है? 11-year-old guy talking. He said कि उसके लिए तेरे को सबसे बड़ी नौकरी करनी पड़ेगी. So this guy went in search for सबसे बड़ी नौकरी. He did his graduation. रिक्शा पुलर था. उनके घर के पास ही ना जनरेटर चलता था, पावर रूम होता था किसी बड़े घर का. तो घर में पढ़ नहीं पाता था. He told his father कि पापा मेरे को नौकरी करनी है, तो मेरे को नौकरी करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो मेरे को दिल्ली जाने का है. उनके पास एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड था. उसके पिताजी ने वो भी बेच दिया, तो दिल्ली जाके पढ़ ले. तो दिस गाय हैड लिमिटेड रिसोर्सेज. ही वेंट टू दिल्ली. उसने दिल्ली जाके पढ़ाई करी एंड 7-8 महीने दिल्ली रहा, जिसमें से वो आधे दिन भूखा रहता था. यूज्ड टू टेक कि अगर वो खाना खाता नींद बहुत आती थी.
So what happened? After 9 months in Delhi, this guy named as Govind Jaiswal cracked IS, rank 46, year 2006. You can check. गोविंद जायसवाल रिक्शा पुलर का बेटा 2006 में 9 महीने में आईएएस का पेपर निकाल गया। डिसिप्लिन कि मेरे को करना है, तो कभी भी टाइम कम नहीं होता अगर आप मेहनत करना चाहो। अंडरस्टैंड? तुम लोगों के पास घर, मकान, दुकान सब है। अंडरस्टैंड? यू आर अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड. व्हाई कांट यू डू दिस? वेयर आर यू मिसिंग? It is not the, again I am telling you, I am talking about average people. He was not very intelligent. He was disciplined. He was goal oriented. This Govind Jaiswal. So you remember his story. Whenever you feel ना कि उसको लोगों ने बोला कि तू नहीं कर सकता, he said that means the person who's telling he can't do it. You can do anything, and today I tell you, each one of you have so much talent. You just need to be disciplined to nourish that talent. कि मैं इसको एनर्जी दे पाऊं ताकि मैं आगे निकल पाऊं. I will just speak one line with Govind Jaiswal once said. When people say you can't, they are revealing their own limits, not yours. This is called Govind Jaiswal. You follow him on Instagram. You follow him on Facebook. It's just need to change the frame of content. You follow good people, you will always be motivated. Next story I will discuss is about Karimul Haq. Anybody heard about Karimul Haq? Karimul Haq एक एवरेज सा आदमी, गरीब सा बंदा. He was from West Bengal. वो रियल एस्टेट की जो टी गार्डन होते हैं ना, टी गार्डन्स, उसमें काम करता था. These are real life stories. I don't cook stories. टी गार्डन में काम करता था वो लड़का. तो one day his mother got sick. So what he did, he wanted her to be taken to a nearest hospital. तो वेस्ट बंगाल में कहीं रात को उसको एम्बुलेंस मिली नहीं. हर मदर डाइड बिफोर कमिंग द एम्बुलेंस. एम्बुलेंस नेवर केम एक्चुअली. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही सोल्ड हिज बफलो. उसके पास एक पुरानी भैंस, उसको भैंस थी, भैंस बेच के उसने पुरानी गाड़ी ले ली. गाड़ी मतलब ही टुक अ बाइक. ही बॉट अ मोटर बाइक. करीमुल हक. He bought a motorbike. Behind that bike, he tied this thing, a wagon, and started giving night ambulance services, and popularly known as Ambulance Dada. From many years, like from 2013 onwards, he kept on doing this. Every night, he used to pick somebody from the village, and he'll take him to the district hospital or wherever the help was required. With no education, nothing doing. वह आदमी करता गया एंड हिज काउंट रेज टू 5,000 पेशेंट्स. यू नो, हम इतना यहाँ पढ़ते हैं, मैडम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग मेहनत करते हैं, हम भी डॉक्टर हैं, हमें पद्मश्री नहीं मिला. दिस गाय वाज अवार्डेड विद पद्मश्री अवार्ड. He remained focused. He said, "Yes, I have to help." Focus. So what? That consistent effort earned him the highest civilian award, Padma Shri. Education. He was never educated. He's just 8th class. But he had that motivation to help others, and he made a life. आज तुम 150 बंदा मेरे समय, मैं उसको याद कर रहा हूँ, 150 आदमी और आप बैठे हो, आपको पता लग गया करीमुल हक नाम का एक आदमी था, और उसको मैंने नहीं रिकॉग्नाइज किया, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया. द अवार्ड भी तुम में से कोई किसी एक को मिल जाएगा, उसका स्कूल के बाहर इतनी बड़ी फोटो लगा रखी होगी. सच में कह रहा हूँ, अकेले फोटो लगे पद्मश्री या पद्म विभूषण किसी को मिल जाए तो. So education is not the only aspect. Character is important. You have to have a very good character, people. Before I proceed further, I'll share one more story. ये आपको पता होगा शायद. नीमा सेना. हाँ, that girl knows it. हाँ, बता क्या? Who was she? Yes, the first pupil amputee to climb Mount Everest. What happened? This girl was a volleyball player. She was traveling in the train, and some thieves came and actually she fought with them. She was thrown out of the train, and she in that fight she lost one of her limb, and she became amputated. Now you are a national volleyball player without a leg now. Life doesn't end there. जिंदगी वहाँ खत्म नहीं होती. उसका एक पैर कट गया, वो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है. अब क्या करे?
She came back strong with lot of determination. She practiced for 2 continuous years. In this उसे क्या बोलते हैं हम अपना पहाड़ों के अंदर ना there's mountain trekking training होती है. 2 साल वो लड़की वहाँ ट्रेनिंग करती रही with an artificial limb and became the first female in the world to climb Mount Everest with an amputated leg. उसके बाद वो रुकी नहीं. Then she is the only girl to climb all the top peaks of 7 continents. So कभी लाइफ में मुश्किल भी आएगी, फेलियर भी आएंगे, अनसक्सेसफुल भी होंगे, बिगेस्ट हर्डल भी आएंगे. You have to remember one thing. If you yourself believe कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, and focused कि मेरे को करना क्या है, फिर कर पाओगे बेटा. इसके आगे I will give you some things which you should add in your character. क्या आप मेरे को बता सकता what is character? Somebody, can you tell me among you, does anybody know what is character? Okay. I can portray what I am not. You know, I can easily portray what I am not. I can portray that I am very humble guy. I can give namaste to everyone. Maybe when I am in a temple, I give donation. I can portray. But when there will be crisis, if I am selfish, I will just run away. Character of a man or a woman is tested in the time of crisis. जब भी लाइफ में ट्रबल आएगी ना, तब करेक्टर सामने आ जाता है. लड़के लोग जानते होंगे ना, हम बोलते होते थे स्कूल में होते थे, यार ये ना मौके पे काम नहीं आता, पच जाता है. ऐसा होता है. कॉमर्स वाले हैं पीछे? कॉमर्स वाले नहीं है. हाँ कॉमर्स वाले हो. कॉमर्स वाले लड़के कौन है? हाथ खड़ा करें. कॉमर्स के लड़के. हाँ कॉमर्स में तो बड़ा मेडिकल वाले तेरे सॉल्यूशन दे रहे हैं, उन्हें तो मौके पे काम नहीं आया. सो करेक्टर क्या होता है? करेक्टर इज व्हाट इज योर रियल वे ऑफ लिविंग will just come up in the time of crisis. After you fail an exam ना, तुम्हारा करेक्टर सामने आएगा. After you are in a stress, तुम्हारा करेक्टर सामने आएगा. After you are in the biggest crisis, your character सामने आएगा. So you have to build a strong character. 4 things you should include in your character. First is kindness. You should be kind. If you are not kind, like kindness will be cherished across cultures. You travel in Europe, you travel in Southeast Asia, you travel in Middle East. If you are passing a smile and kind to people in helping, even they recognize. They don't know. वियतनाम जैसे जब नए कंट्री चले, यहाँ जब घूमने आते हैं, वहां भी अगर आप जाके आराम से काइंडली किसी को काइंडनेस शो करोगे, वो आपकी काइंडनेस समझ जाएंगे, आपकी लैंग्वेज भी समझेंगे. Kindness has to be in character. You see somebody in pain, you should help him. You should somebody needs your help and you can pass on a help, just let a hand. This is you should inculcate in yourself. Kindness एक character में डालनी बहुत जरूरी है. Second thing which you should have in your character is courage. Courage का मतलब होता है हिम्मत. कहना हिम्मते मर्दे खुदा. अगर आप हिम्मत करोगे ना तो कुछ भी अचीव कर सकते हो. वो अरुणिमा सिन्हा, उसने हिम्मत करी, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई. Understand? And similarly that guy Jaiswal, he cracked IAS. Courage is very important in character. Like when in crisis, if you have courage, you can just tide over the crisis. Failures, not facing, like if you like, I tell you, those who skip the exam, जो पेपर छड़ के भज जाते हैं या पेपर दे नहीं जाते हैं, छुट्टी मार लेते हैं या कहते हैं मैं मेरे तो नहीं होएगा, मेरा पेट दुखता है, ये सब होता है. It is not. That is the biggest failure. Have you heard about Thomas Edison? Edison जिसने बल्ब बनाया था. Somebody asked Thomas Edison, very important story, कि you failed 1,000 times. You failed 1,000 times before inventing the bulb. No? So he just politely, he was a very learned person. So he just politely turned it down by saying, कि I learned 1,000 ways of not making the bulb. Failures teach you. These failures, अगर आप एक
मेहनत करके पेपर देंगे, क्लास टेस्ट देता, नहीं नंबर आए तो पता लग गया यार पेपर इचू नहीं आता, होल क्यों आता है। अगर देने नहीं गए, अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की, आपने फेस ही नहीं किया, यू विल नेवर लर्न। फेलियर का एस्पेक्ट है, दोज हु डोंट फेल विल नेवर सक्सीड। जिहड़ा बंदा हारदा है जितना हो जाता, वो सब गप्पे होती हैं। दे माइट बी हैविंग दैट व्हाट यू कॉल इट, उसे बोलते क्या है, born with a golden spoon और ये सिल्वर स्पून, ठीक ऐसे होता है कि सब कुछ पका पकाया मिल गया, हमें नहीं मिला, सेल्फ मेड है, पहला पैसा भी खुद कमाया, पर ये पता कैसे नहीं कमाया जाता, किस तरह नहीं मिलते, किस तरह सक्सेस नहीं होती है, ये आपको समझ आ जाएगा अगर आप हर बार अपने फेलियर्स को फेस करोगे, फिर पढ़ के जाओगे पेपर। एक और बात बताता हूं, शायद तुम लोगों को नहीं पता होगी, मैंने बताया ना एवरेज था, तो मेरे पास जब +2 पास हुई ना, तो मैं +2 के बाद ये अपना CMC क्रैक नहीं कर पाया, मेरे को BDS मिली फरीदकोट में। मेरे पिताजी कहते यार अपन डेंटल डॉक्टर नहीं करनी, अपन MBBS करनी है। पापा कोई गल नहीं, आप साल वेट कर लेंगे। तो अब तो तुम्हारे सारे अच्छे क्लासमेट बैचमेट सब स्कूलों में कॉलेज चले आते हैं, उस समय तो इतनी कोचिंग भी नहीं होती थी, बहुत कम कोचिंग थे, तो इतने तो ऑनलाइन भी आ गई ना, वही 3 किताबें दोबारा पढ़नी है बैठ के। I had that motivation कि यार रह कहाँ गए, हमने मेहनत करी थी, रह गए, पढ़ना शुरू किया, पेपर ऊपर देते रहे, 10 ईयर के तो बुक्स मिल जाती थी, उस वहां से क्वेश्चन सॉल्व किए। To cut short the story, in just 1 year I was already rank 1 in CMC. The guy who was not even in the list, he became all India rank 1. कैसे? कुछ भी नहीं, बस डिसिप्लिन था, भी पढ़ना था, इस तो बिना हमारे को ऑप्शन है नहीं है, करिए कि हो, बेइज्जती महसूस करते थे कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो एवरेज सा लड़का आपके सामने खड़ा हो गया, दोबारा भी फेल हो सकता था, आई हैड सो मच करेज टू फेस माय फेलियर। तो क्या हुआ, सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, आई टेल यू, टू फेस मैरिज पार्टीज। लड़का करता क्या है, तो मैंने जाना छोड़ दिया। अब भी बोलता हूं, अभी अगर आगे +1 +2 है ना, जस्ट लिमिट योर सोशल सर्कल, डू नॉट अटेंड किटी पार्टीज, डू नॉट अटेंड योर फादर्स पार्टीज, do not attend unnecessary birthdays, no need of too much celebration, you have a limited time, तुम्हारे पास 2 साल लिमिटेड है बहुत सारे, और पहले ही कम है, मुझे लगता है जितना आजकल कंपटीशन हो गया ये पहले ही कम है। सो डेली एवरी सिंगल मोमेंट हैज टू बी वेरी मच टू योर स्टडीज, सारा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई के टाइम है, बाकी बच्चे सारा टाइम ही टाइम है लाइफ में, फ्री है। मेरी जगह आज कई लोग जो बताता हूं मैं, कई लोग पढ़ रहे होते हैं पर ज्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, ये उनके लिए है। इस वन दोस्त जिनके नंबर 70-80% आ रहे हैं, 95-99 आ रहे हैं, 80-85 तक ले रहे हैं, पर वो कर सकते हैं। आप भागना शुरू करते हो, कुछ लोग भागे ही नहीं। द गोल इज टू इसके ऊपर चढ़ना है, स्टेज के ऊपर चढ़ना है। अगर आप स्टेज से थोड़ा भी नीचे गिर गए ना, तो दोबारा भागना पड़ेगा। समझे मेरी बात? आइदर यू क्रैक एग्जाम और यू आर अ फेलियर। Failures are not bad, I don't say, frankly bad. And you can come back again with much stronger power and willpower. Last thing, in your habit, you should, in character, should add is curiosity. I would not say the last but second last thing. Curiosity बहुत important है. जो लोग curious नहीं होते ना, वो ज़्यादा गेन नहीं करते लाइफ में. जो लोग सिर्फ लोगों के ओपिनियन मानते रहते हैं, वो they not gain much. So you are very curious. When you study, think, read between the lines. Specifically, physics, I would say, when you read physics, में just not solving the exams, but reading and mental application. This time, NEET exam, medical exam, a few of my friends, kids have appeared. So I have seen, it is all very much applied exam. You have to read, concentrate, and similar in biology also. What are the wider implications of this? Because slowly and slowly the pattern is changing. They want to curb. Why this pattern is changing? They want to curb that culture has started. All the exams that they give. This is like when the pattern of the exam changes to questions which are reframed by which are not even in the book, which based on the classroom learning. उसी तरह NEET change हो रहा है. NEET is getting changed because of this. And इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा क्रिएटिविटी। गुड कैरेक्टर शुड हैव क्रिएटिविटी। जो सब भीड़ कर रही है वो हमें नहीं भी करना है, हमें वो करना है जो मुझे ठीक लग रहा है, विच आई थिंक इज द बेस्ट। एंड यू नो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, यू नो तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम कौन सी स्ट्रीम में कितना एक्सेल कर सकते हो, तुमसे कोई नहीं जानता है।
बस ये सोच के अपना करेक्टर बिल्ड करना आपने। बिफोर आई वाइंड अप, मेरे पास 2-3 बातें और हैं आपको बताने के लिए, जो मैं स्पेसिफिकली लिख के लाया था। जस्ट वेट अ सेकेंड। जिन लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, some people have problem that they read but they cannot recall it, basically very common thing कि वो सब मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल चीज ही इम्तिहान है, रात को पढ़ता हूँ सुबह सब साफ हो जाता है, मतलब दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सो आई टेल यू देयर इज अ डोज व्हिच योर ब्रेन कैन टेक। ठीक, लिसन, हाय, देयर इज अ डोज व्हिच योर ब्रेन कैन टेक। आप उतनी ही डोज ले सकते हो जितना आपका दिमाग याद रख सकता है। बियॉन्ड रीडिंग, बियॉन्ड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। जब लगे कि आप थक गए हो, योर ब्रेन इज टायर्ड, देयर इज नो पॉइंट जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बुक एंड बार बार उसको देखी जाओ। विल नॉट आइदर चेंज द सब्जेक्ट, और आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो स्टार्ट राइटिंग, नहीं पढ़ पा रहे हो तो गो टू स्लीप। स्लीप इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। इफ यू स्लीप हाफ एन आवर or 1 hour extra in a day, it is wonderful for your memory. As a doctor, I'm telling you, if you give rest to this machinery now, you can really recall things well. So what you do is, when you read something, let's say I'm talking about particularly a book, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने आफ्टर फिनिशिंग माय, एक और फेलियर सुनाता हूँ अपना। मैंने सीएमसी पास आउट हुआ तो मेरे को लगा यार अब हम भी आईएएस कर लेते हैं। आई आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। तो मेरा माय एल्डर ब्रदर ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, ही इज जॉइंट कमिश्नर पुलिस। तो उसको देखा, मैंने कहा ये तो नलायक था, ये बन गया तो मैं तो बन ही जाऊंगा। ही वाज फ्रॉम गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना। मैं अगर इसका निकल गया मैं तो कर ही जाऊंगा, इसकी बड़ी बात है। तो हमने जी सीएमसी से एमबीएस करके हम चले गए दिल्ली, एंड वी वर देयर लाइक स्टेइंग इन द रूम। घर वाले पैसे देते थे, अच्छा कमरे में एसी लगा था, 3 टाइम रोटी मिलती थी। हमारी स्टोरी गोविंद जायसवाल जैसी नहीं थी, हमें खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था, कोचिंग के पैसे थे, पढ़ते थे आराम से बैठ के। पहली बार में प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ। दूसरी बार में इंटरव्यू में पहुंच गए। डॉक्टर एट दैट टाइम जी बालागुरु स्वामी वाज माय बोर्ड मेंबर, तो ही वाज नॉट वेरी बट हैप्पी विद, ही हिमसेल्फ वाज एन इंजीनियर, तो इतने ज़्यादा सर खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे को इंटरव्यू में 60 नंबर दिए, 60 नहीं 110 आई थिंक, और निकल गए। यानी हमने कोई बात नहीं, अगली बार बोर्ड अच्छा आएगा। नेक्स्ट टाइम वी अपीयर्ड, फिर मेंस फेल हो गया। फोर्थ टाइम मैंने अपीयर्ड, व्हिच वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, I got Vijay Singh board, prelim, mains, and then went to interview. In that interview, I did fairly good. I got a job which was like not IS proper, subordinate services में थी. So I had an option to choose that go back to the failure from here और कुछ settle with something less. जैसे कि पहले उस टाइम BDS मिल रही थी, तो वो कुछ settle हो जाते हैं. Again I took a stand कि नहीं यार, अगर अफसर नहीं बने ना तो आप फिर उन मेहनत करते हैं दोबारा. I came back, prepared again, cracked by this MS exam, did surgery, which I really wanted to do when I was in MBBS. मेरे को सर्जरी ही करनी है, मुझे लगता था कि मैं सर्जन के लिए सर्जरी करने के लिए बनाऊं. And I came back accepting 4 years of failure. और मेरे को लगता था जो मेरे जूनियर थे, जिनको मैं पढ़ाता था स्कूल में ना, कॉलेज में, वो मेरे बॉस टाइप थे वहां पे. तो बड़ा मुश्किल लगता था. See, I was like I was elder to them and they younger to me and 2 years senior to me. जो मेरे को सर कहते थे वो डॉक्टर मिलन कहने लग गए. डॉक्टर साहब आप ऐसे कर लेना. From in medical science, hierarchy is very particular. You have to address your senior, even by one day, as a sir. Similarly in police and administration, एक दिन के बंदे को भी सर कहना पड़ता है और मत दम तक. मैं आज भी उनको सर कहता हूँ जो मेरे से जूनियर थे, but they became my senior in my residency. तो अमन सर, हाँ जी सर, जी सर. वो मुंह से सर निकलने के टाइम बड़ी शर्म आती थी यार. एक बार तो अंदर से आत्मा पसीज जाती थी, इसको तो मैं पढ़ाता था, इसको सर बोलना पड़ रहा है यार. इतना बड़ा फेलियर. तो फिर कुछ नहीं हुआ, 3 साल निकल गए, बाद में आए, प्रैक्टिस में आए. अल्टीमेटली क्या होगा, लाइफ इज द बिगेस्ट एग्जाम. जब प्रैक्टिस में आओगे, जब कुछ भी करोगे आप, तो दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम. वहां तो तुम्हारा रियल टैलेंट सामने आएगा, वहां रियल कैरेक्टर सामने आएगा. वो तुम्हें 2, 4, 5 घंटे की जो तुम्हें वो होती ना नमोशी, नहीं कर पाए यार, ये नहीं हो पाया या ये नहीं कर पाए, वो सब चले जाएगी. It will just wiped off in a very early phase. तो कभी छोटी मोटी ये फेलियर से घबराना नहीं चाहिए. मैं 6 बार फेल हुआ हूं. इससे ज्यादा तो तुम्हें क्लास टेस्ट में नहीं होगे, और मेजर स्टेप्स में रोता था मैं. Cry sometime. It's not bad. Crying is not bad, especially boys. कोई रोने से कमजोर नहीं हो जाता. Remember this. People say ना कि यार ये तो रोता है. रोने से you went out.
अंदर रखने से बंदा तंग होता है, एक दो बार रो लिए ठीक है, उसके बाद फाइट बैक। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट इज कि लोग उससे एक्सपेक्ट ही नहीं करते, यार ये भी कर सकता है, लेट्स से वो जो मिडिल बैठा है ये भी कर लेगा। प्रॉब्लम होती है सीनियर पे, जो इंटेलिजेंट होते हैं उस पर प्रेशर होता है कि 99 लाने, हम पे तो प्रेशर ही नहीं था कभी। अगर हमने 75 से 95 पे आ गए हमारे लिए तो सक्सेस होगी। जो 98 पे बैठा उसकी 95 पे भी हार है। सो ऑल दोज हु आर एवरेज, जिनको लगता है कि वो एवरेज में आते हैं ना, वो मेरे साथ चले, जस्ट स्टे फोकस्ड। जस्ट इसका मतलब ये नहीं है जो बाकी आए वो बात ना सुने वो भी सुने। जस्ट say one thing that if you are having, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, having a good character, maintaining focus, discipline, having gratitude, staying consistent, keeping the curiosity will help you grow baby, पक्का। and believe me, और कभी भी लाइफ में हार मत मानना, बढ़ाएंगे। अगर आप कभी हारे ही नहीं तो आप जीत सकते ही नहीं हो, याद रखना। with this I would just give you one more thing जो मैं एक स्पेशल तुम्हारे लिए लाया था। हाँ, दिस इज लाइक, कहता तकदीर तब बदलती है जब जिद हो कुछ कर दिखाने की। तकदीर तब बदलती है जब जिद हो कुछ कर दिखाने की, वरना उम्र बीत जाती है किसी के इंतजार। जब तक आपने वो कर ही नहीं है ना, मैं करके दिखाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, फेलियर से कभी नहीं डरना। विद दिस थैंक यू मैम, और just stop doubting yourself and start doing. Thank you so much, sir. Now we have a question answer round here. Kindly take it. Hello sir, my question is, thank you firstly for a great motivation. How to overcome the demotivation? This world is full of competition. It's like everybody is a competitor. The one who's sitting very next to you, वो आपका competitor है। एक मूवी आई थी 3 Idiots, आपने देखी थी ना, उसमें वो इंट्रोडक्टरी स्पीच देता है कि जो तुम्हारे साथ बैठा है वो तुम्हारा competitor है, वो तुम्हें गिद्धों की तरह नोचता है और अल्टीमेटली तुम्हें ही इस जॉब लेने के कंपटीशन में से बाहर निकाल देगा। सो डीमोटिवेशन उन लोगों से आती है जो आपसे compete कर रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे वेल विशर्स कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे। The one who feels jealous about you, the one who thinks that you are the real competitor, will try to demotivate you. Demotivation is, Swami Vivekananda का famous quote है, strength is weakness, strength is life, weakness is over you. तो यहाँ पे प्रमाण कर दीजिए। Just somebody is demotivating, either show them a deaf ear that you don't want to listen to them. If they then also try to stay away from them. नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव लोगों से दूर रहने का तरीका क्या होता है कि आपने हमेशा उसको पॉजिटिव बातें बतानी है। खुद में बोले ना यार ये बड़ा मुश्किल बोला है, मैं आराम कर देना, ताकि ही स्टार्ट्स हैविंग सेल्फ डाउट। व्हाट यू विल स्पीक इज प्रैक्टिकली, तुम बोलोगे ये एग्जाम बहुत मुश्किल है तो वो शायद अगले वाले को नहीं पता लग रहा, तुम अपनी स्टोरी बता रहे हो कि ये मुश्किल है। तो व्हेन यू विल स्पीक, समबडी टेल्स यू कि यार ये बड़ा ही मुश्किल पेपर है, आजकल का नीट बहुत मुश्किल हो गया, करना कितना है, बोला मेरा गार्डन तू देख। सो तू अपने आप को बता रही है कि मैं निकाल लूंगी। Until unless you yourself are that motivated, फिर तुम्हें कोई नहीं मोटिवेट। My question to you is, how do you define success and what are the parameters to measure success? Okay, this is a very interesting question. For all those who are here, what is success? पहले तो मैं बताता हूँ। The success की definition with age ही change होती जाती है। Like many teachers can relate with me. I can tell you what was meaning, जो मेरे लिए success maybe at the time of 20s थी वो 30s में change होगी, 30s की 40s में change होगी and 50s की शायद आगे और change होती जाएगी। Success individual parameters के हिसाब से बहुत बार change होगी। Let's say somebody who is living at an age of 90, उसके लिए यही success है कि वो जिंदा है। Understand? Somebody who has living at the age of 50 has a good family with kids working somewhere और बच्चे पढ़ रहे हैं और maybe in a good medical college या schools में चले गए हैं, he is successful और she is successful, उसने बच्चे पढ़ा दिए। Somebody who is in 40s, उसकी सक्सेस पैरामीटर क्या होगा, उसके 3-4 बिजनेस चलते हैं, रोटी खाता है, अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं एंड ही हैज मनी, दैट इज अ सक्सेस।
बट इफ इसमें से कुछ डिडक्शंस करने पर्सनल सक्सेस के अंदर, लेट्स से ही हैज अ ब्रोकन फैमिली, he himself is very egoistic, nobody likes him, people are scared of him, people don't love him, then he might be successful as far as the parameters which are set on the economic grounds, पैसे के grounds पे. You might be the boss of 200 people, but of those 200 people, if 198 hate you, you are not a successful person. That is not an individual success. Individual success is that if you have a boss, maybe of 100 persons, but among those 100, 98 love you like this. यार ये हमारा बॉस बड़ा अच्छा आदमी है, ये बढ़िया काम करता है यार, he's very kind, he's generous, he listens to us, he's non-egoistic. So success parameters जो हैं वो individual हैं. मैं आपको अपने पैरामीटर्स नहीं दे सकता, आप अपने पैरामीटर्स, और विद एज आपके भी चेंज हो जाएंगे. फॉर ऑल दोज सिटिंग हियर, लाइक स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, योर सक्सेस पैरामीटर्स आर वेरी सिंपल. स्कोरिंग हाई. You don't have a different success parameter. You have to, if you are fighting for a competitive exam, education और success. मेरे पिछली बार मेरे 80% नंबर आए थे, इस बार मैं 87 ले आया, तो मैं सक्सेसफुल हूँ. मेरा दोस्त का 97 आया, मुझे कोई लेना देना नहीं है. My parameters are individualized to me. मैं इस साल नहीं पास हो पाया, अगली बार हो जाऊंगा. Failures are not an issue. बहुत ज्यादा डरा के रखते हैं लोग, भी तू करेगा क्या, बहुत कुछ हो जाता है, कुछ भी कर सकते हो, बहुत इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इतने सारे हैं. एंड बिलीव मी, द रिचेस्ट पीपल इन द ऑन दिस अर्थ आर नाइदर द डॉक्टर्स. कोई डॉक्टर अमीर नहीं होता, डॉक्टर नहीं होते, ना इंजीनियर्स होते हैं. दे आर नॉट द रिच पीपल, दे आर वर्कर्स बेसिकली. रिच पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स. अंडरस्टैंड? तो वो शायद स्कूलों में पढ़ते भी नहीं है, कहीं ऐसे स्कूलों में आते भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं लगाते हैं. तो इकोनॉमिकली इज नॉट अ सक्सेस फैक्टर. सक्सेस आपकी इंडिविजुअलाइज्ड है, आपकी पर्सनल है, जो आप करना चाहते हो. यूनिवर्सल क्राइटेरिया कभी नहीं मिलेगा. ठीक है. सचिन तेंदुलकर ने लास्ट टाइम बताया था, कितना 10वीं 12वीं पास ही है. विराट कोहली इज आल्सो नॉट वेरी वेल एजुकेटेड. ठीक. यू सी विराट कोहली, लेट मी टेल यू विराट. आप लोग ना मेरी एक बात याद रखना, जब आप यूट्यूब वगैरह देखते हो ना, तो इन लोगों के पॉडकास्ट देखा करो, वो बहुत मोटिवेटिंग होते हैं लाइफ लेसन्स के लिए. विराट कोहली की एक स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें, बिफोर एंड देन आई विल जस्ट वाइंड इट अप. विराट कोहली को के फादर की डेथ हो गई. His father died young. His father was a stock market trader. You know this? किसी को पता है विराट कोहली की स्टोरी? Anybody knows? यार विराट कोहली की स्टोरी नहीं पता तुम्हें? क्रिकेट कौन कौन देखता है? इतने बंदे देखते हैं, 2-3 बंदे देखते हैं, क्रिकेट खत्म हो गया इंडिया में. हम आई प्रमोट क्रिकेट क्लब आल्सो. एनीहाउ, तो विराट कोहली के फादर की जिस दिन डेथ हुई ना, तो he died of a heart attack. He had a major loss in stocks and he died of a heart attack. तो he was crying. मॉर्निंग में उसकी सिलेक्शन थी फॉर दिल्ली क्रिकेट क्लब के लिए, डीसीसी के लिए. तो दिस गाय फादर फ्यूनरल वाज दैट मॉर्निंग. तो ही सेड कि मैं खेलने जाऊंगा. ही वेंट देयर, ही प्लेड, ही केम बैक एट 4 एंड देन डिड फ्यूनरल टू हिज फादर. इससे बड़ी डेडिकेशन या डिसिप्लिन नहीं हो सकता. करेक्ट, काम नहीं छोड़ सकते. फिर वो तो चले गए, एंड दैट्स व्हाई ही इज विराट कोहली. अग्रेशन से नहीं है. विराट कोहली इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही इज वेरी अग्रेसिव, बोल देता है, गाली निकाल देता है. ही इज विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन. यू नो ही इज अ वेगन. ही हैज हिज स्लीपिंग टाइम फिक्स्ड. He sleeps very early. You will never see a Virat Kohli in any nightclub. We must have never seen, except for marriages, he has never into social life. और उसका अपना है वो. Do you know this chain that Virat Kohli have a chain also that is 19 social? I think हाँ 1-8 है ना, 1-8 social. But 1-8 commune, yes. He has a खुद नाइट क्लब रन करता है, but he never goes there. That is Virat Kohli. You have to have that dedication. So what matters more, numbers or skills? As most of the successful people do not have higher grades, but they have great skills. But in today's time, everybody is running behind grades only. So. What's your good name? Agam. Hi Agam. Most skill or numbers? Definitely, you will have examples of either way. You know, you will have people who have just got good numbers and are better placed. And then you have people who have no numbers but good skills.
And there are people who have numbers also and skills, but they are not good. They haven't met that parameters. So first and most important thing is marketability of the skill. क्या तुम्हें अपना स्किल बेचना आता है? If you cannot market your skill and you don't have a marketable skill, then there is no point having that skill. You might be the very good artist, but if you do not know how to perform publicly, आपको अकेले में बैठ के हारमोनियम बजाना आता है, तो उस स्किल का फायदा नहीं है. Understand? Now coming to your question, skill. Skill is also a parameter of marks only. What really tests you is the real world. ये दुनिया टेस्ट करती है आपको ना. See, if you are a good physician, if you are a good doctor, so you might not be a very brilliant in the school. But let's say I talk about my medical college. एक चीज मैं और बताऊंगा, just before I end, it's a very important thing. मैं आपकी बात बाद में पूरी करता हूँ. मेरे दिमाग में बात थी आपको बोलनी थी, मैं भूल गया. हमारे यहाँ पे ना मैडम पटियाल मैडम होते थे, यहाँ पे पटियाल सर होते थे. तो पटियाल सर की खास बात थी, आई रिमेम्बर दिस थिंग, बहुत अच्छी बात है. हमारे ना अभी तो आप यहाँ लगते ना, तो ये ओपन में लगती थी नीचे, वहां पर लॉन में हमारी ऐसी मीटिंग होती थी. तो पटियाल सर यूज्ड टू टॉक टू अस. तो वहां पर हमारे डीए में रिवाज था कि बच्चों को बुला के यहाँ पे मेडल डाल देते थे कि दैट यस दिस बॉय हैज डन दिस गर्ल हैज डन दिस, ही इज गॉट लॉरेंस टू स्कूल इन दैट एंड ऑल. तो हम सारे एवरेज वाले पीछे खड़े रहते होते थे. हम यहीं पे खड़े ऐसे खड़े हैं. तो एक बच्चे को अवार्ड मिला, उसका नाम था श्वेता संधू, मैडम मेंबर. उसको रिवार्ड मिला कि यार मैंने कहा इसको कुछ किया, इसको अवार्ड इस चीज का दिया. उन्होंने अवार्ड दिया दैट शी मेंटेन्ड हर 100% अटेंडेंस. आई रिमेंबर श्वेता संधू गॉट रिवार्ड. तो मैंने कहा यार हम तो कभी स्टेज पे गए ही नहीं. तो मुझे सबसे आसान रास्ता मिला कि अगर रोज स्कूल आऊंगा ना, तो मैं एक दिन स्टेज पे जा सकता हूं. I can tell you, this is a real story. So this was in 10th she got this award. क्योंकि 10th में बहुत लोग छुट्टियां मार जाते थे. डीएवी स्कूल में पढ़ाने का रिवाज था, शाम को भी क्लासेस लगती थी. तो +1 में जब हुआ, मैंने कहा हम तो कभी इतने बड़े स्कूल में स्टेज पे आए नहीं, तो हम कैसे आएंगे. और एवरेज स्टूडेंट करता क्या था, मैं कहा स्कूल ही आना है. मैंने 1 साल छुट्टी नहीं मारी, पूरा 1 साल. मे बी लाइक शायद 10-11 महीने में स्कूल चलता है, बाकी सारे तो छुट्टियां होती हैं. मैंने 8-10 महीने छुट्टी नहीं मारी स्कूल से. कुछ मर्जी होता स्कूल आया था. और नेक्स्ट ईयर जब अवार्ड मिला तो 4-5 बच्चों को मिला, उसमें से एक मैं था. उसके अलावा उन्होंने कुछ और अवार्ड भी दिए जो मुझे नहीं मिलते थे पहले. मतलब एक दिस बॉय हैज स्कोर्ड वेरी हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, हाईएस्ट इन फिजिक्स, हाईएस्ट हिस्ट्री. और मैं लगातार स्कूल आया, मेरे को एक अवार्ड भी मिला पढ़ाई के लिए, जो कभी नहीं मिलता था. बिकॉज इफ यू कम टू स्कूल एवरी डे, you can definitely beat anyone. स्कूल में इतना दिमाग लगता है, इतना बड़ा करिकुलम होता है, इतने टीचर हैं, एक कोचिंग वाले नहीं चला सकते हमें. They can just be a guide. हम we are relying more on coaching, that is wrong. Rely more on school. Be dedicated to school. 6 घंटे यहाँ बैठ के पढ़ना, कोचिंग वाले 2 घंटे में क्या पढ़ा लेंगे. हम कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट होता है. हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आप यहाँ बैठ के पढ़ लो. स्कूल में तुम्हें कोई जबरदस्ती थोड़ा मना करता पढ़ने के लिए, स्कूल तो पढ़ने की जगह है. So remember this, I just scored good marks. I was able to come to school, able to reach the dais just because of my attendance. Remember this, attending school is very important for your mental development. दोस्त भी बनेंगे, पढ़ाई भी करोगे और ग्रो भी करोगे. ठीक, आपकी बात है सर. स्किल एंड मार्क्स. सर जिस स्टेज पे आप लाइफ में हो ना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड्स हैं. I tell you why. Because they are the only marketable skill. Understand? If you want to see, I'm not talking about 7th, 8th or 9th class students. You are +1, +2. You have already selected a stream. Some of them are medical and non-medical. उनका तो बहुत ही, मेडिकल वालों का तो बहुत ही नैरो हो चुका है यहाँ से. Either you will be a good doctor or a good staff, good nurse or maybe a good dentist, or then diversify. अगर नहीं करते हो तो डाइवर्सिफाई करोगे, या बीएससी करके डाइवर्सिफाई करोगे. बट इन मेडिकल स्ट्रीम, अगर नॉन मेडिकल में जाते हो, यू विल चेंजिंग द स्ट्रीम समवेयर. तो आपके लिए जो 11वीं 12वीं में है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड ये है बेटा. यस, वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम बीकॉम करके आप आगे एमबीए करते हो, देन स्किल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन इट कम्स टू रियल वर्ल्ड,
then it is marketability of the skill. Be a good cricketer or a good scientist, that is marketable skill. But अभी के स्टेज में don't get misguided कि मेरे पास ये skill है, I am a very good YouTuber or I am a very good coder or I am a very good this thing. तुम्हारा अभी एक ही skill है, that is you have to get good marks, get into a good college, get into professional college, then there develop and inculcate new skills or develop new skills. Wonderful guidance and